आ गई दीप्ति। Good morning, ma'am. रात Good को Good पार्टी morning, चला ma'am. morning. है। Good Good ग्यारह morning, बजे morning, ma'am. आप Good morning, समर वाली everyone. जगह पहुंच गए दीप्ति मैम ने Good 9 morning, बजे beta. समर वेयर पहन लिया। Good 30 morning. degrees Celsius, yeah. Oh Good wow. morning, Good Dipti. morning, Good ma'am. morning. Yeah, good morning. Very good You morning to slept late everyone. night, Dipti? Good morning to all of Good Anji? you. morning, ma'am. Late night सोए थे? Not at all. I slept at I think 8:45, 9, 8:45 I was in bed. I think by Oh, 9 मैं प्रिया से चैट कर रही थी कुछ एडमिन लॉजिस्टिक्स के लिए. उसके बाद I think 9 o'clock. Yeah. slept. Not at all late night. Just not feeling too great. आज health wise थोड़ा challenge है. बहुत हाँ ज्यादा लग रहा history है. मेरी. हाँ. We can see. We can feel it. हाँ नहीं हो जाएगा अभी up and about. आज तो मेरा बहुत busy work है. Yes, lots of blessings and Thank you. magic dust. Okay. So today's topic is magical way out of negativity. So this is basically कि हम सबके लाइफ में कोई particular issue होता है जो हमको बहुत bother कर रहा होता है. ठीक है. So anything, sometimes it is to do with money, sometimes it is to do with certain relationship, a particular relationship जिसके कारण हम बहुत बार बार low zone में चले जाते हैं. Sometimes it is to do with health aspect, कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है, कुछ वरी रहती है किसी पर्टिकुलर हेल्थ एस्पेक्ट के लिए. इस तरह से कोई पर्टिकुलर एक इशू है जिसमें जो हमारा नॉट दैट ग्रेट चल रहा है. सो वो उसके बारे में है द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी. वी हैव टू जस्ट पिक दैट अप. और उसमें आज हम खूब सारा मतलब जैसे बारिश करेंगे ग्रैटिट्यूड की, कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड जिसको बोलते हैं. तो आज हम कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड करेंगे उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए. और बिकॉज उसमें एंड यू विल सी इंस्टेंटली एक शिफ्ट आ जाएगा. बिकॉज अभी तक हो सकता है कि वो वरी या फियर या कुछ ना कुछ नेगेटिव जोन में हम लोग थे. सो नाउ वी विल ब्रिंग दैट अप एंड अबाउट. और वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो हमारे लाइफ का है, जिस कुड बी एनीथिंग. इट कुड बी समवन नॉट गेटिंग अ जॉब फॉर अ व्हाइल, जिसके कारण वो बहुत परेशान रहता है, जिसके कारण वो कभी भी अबव द लाइन नहीं आ पाता है. So that's what it's about. And we'll just see the image, and then Shivani from Singapore will read for us. Good morning. Good morning. Yeah. So this is the image here. So ये हमारा नेगेटिव एस्पेक्ट है. रूम में अंधेरा है. वो अंधेरा रिलेशनशिप का हो सकता है, वो अंधेरा पैसे का हो सकता है, वो अंधेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है या बहुत एट द रॉक बॉटम पहुंच गया है, ये उसका डार्कनेस हो सकती है. इट इज टू डू विथ सम डार्कनेस इन आवर लाइफ. दैट मीन्स कोई चिंता है हमारे दिमाग में किसी चीज के लिए. एंड देन टुडे वी विल पुट दैट शावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, जिससे ये जो अंधेरा कमरा है इसका दरवाजा थोड़ा सा खुलेगा. ठीक है, जैसे इसमें खुला है. एंड यू कैन सी वो ग्रैटिट्यूड की वजह से खुल रहा है. और वो खुलता जाएगा बिकॉज उसके बाद हमको ये पता लग जाएगा कि हर बार अगर वो चीज हमारे दिमाग में आ रही है, देन व्हाट शुड बी आवर एटीट्यूड एंड व्हाट शुड बी आवर ऑटो सजेशन. हमें अपने आप को क्या बोलना है. सो या वील स्टार्ट रीडिंग. ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है. हाँ जी. यस शिवान, प्लीज स्टार्ट. Day 7, The Magical Way Out of Negativity. Quote, a thankful person is thankful under all circumstances. Unquote. Baha'u'llah, Persian founder of the Baha'i faith. Whether it's a relationship in turmoil, financial pressure, a lack of health, or problems in a job, negative situations arise because of a lack of gratitude over a long period of time. If we are not grateful for each thing in our lives, we are unintentionally taking those things for granted. Taking things for granted is a major cause of negativity because when we take things for granted, we are not giving thanks in return and we stop the magic happening in our life. Just as giving thanks to others will always lead to our life magically increasing, so must taking things for granted always lead to our life decreasing. Are you grateful for your health when it's good? Or do you only notice your health when your body gets sick or hurts? Are you grateful for your job every day? Or do you only value your job when you hear there are
will be cutbacks. Are you grateful for your pay or salary every single time you receive it? Or do you take your pay or salary for granted? Are you grateful for your loved ones when everything is running smoothly? Or do you only talk to others about your loved ones when there are problems? Are you grateful when your car is working well? Or do you only think of your car when it breaks down? Are you grateful to be alive each day? Or do you take your life for granted? Taking things for granted results in complaining, negative thoughts, and words. So when you complain, by the law of attraction, you must bring more things into your life to complain about. If you're complaining about the weather, the traffic, your boss, your spouse, your family, a friend, a stranger, waiting in lines, bills, the economy, the cost of something, or the service of a company, you're not being grateful and you're pushing your dream life further away with every complaint. Now you understand that complaining, negative thoughts and words, and taking things for granted stops the good things in your life. Now you understand that when something goes very wrong, you have unintentionally not been grateful enough. It's impossible to be negative when you're grateful. It's impossible to criticize and blame when you're grateful. It's impossible to feel sad or have any negative feeling when you're grateful. And the best news is that if you have any negative situations in your life currently, it won't take a long period of time to transform them with gratitude. The negative situations will disappear in a puff of smoke, just like magic. First, as difficult as it may be, you have to look for things to be grateful for in the negative situation. No matter how bad things are, you can always find something to be grateful for, especially when you know that your gratitude will magically transform every negative circumstance. Walt Disney, who knew about the true magic of life, showed us how to do this in his movie Pollyanna. Disney's 1960 movie Pollyanna featured the Glad Game, which had a profound effect on me when I was a child. I played the Glad Game featured in the movie through my childhood and adolescence. To play the Glad Game, you look for as many things as you can to be glad about, especially in a negative situation. Finding things to be glad about or finding things to be grateful for in a negative situation make the solutions appear. Walt Disney demonstrated the magical power of gratitude in Pollyanna, and thousands of years earlier, Buddha demonstrated the way to use the same magical power when he said, "Quote, let us rise up and be thankful, for if we didn't learn a lot today, at least we learned a little. And if we didn't learn a little, at least we didn't get sick. And if we got sick, at least we didn't die. So let us all be thankful." Unquote. Gautam Buddha, the founder of Buddhism. Let Buddha's words be your inspiration, and today take one problem or negative situation in your life that you most want to resolve and look for 10 things to be grateful for. I know it can be challenging to begin this practice, but Buddha is showing you the way to do it. Make a written list of 10 things on your computer or in your gratitude journal. As an example, your problem might be that you're out of work, and despite your best efforts, you're still unemployed. To magically turn this situation around,
you have to do a concentrated practice of gratitude on the situation. Here are some examples of what you might say. Number one, I'm so grateful to have had more time for my family during this period. Number two, I'm grateful that my life is in a lot better order because of the spare time I've had. Number three, I'm grateful that I've had a job most of my life and that I am experienced. Number four, I'm truly grateful that this is the first time I've been unemployed. Number five, I'm grateful that there are jobs out there and more new jobs are appearing each day. Number six, I'm grateful for all the things I've learned in applying for jobs and in going for interviews. Number seven, I'm grateful that I have my health and that I can work. Number eight, I'm grateful for my family's encouragement and support. Number nine, I'm grateful for the rest I've had because I needed it. Number 10, I'm grateful that through losing my job, I've realized how much having a job means to me. I had never realized that until now. As a result of the unemployed person's gratitude, they will attract different circumstances and their current situation must and will magically change. The power of gratitude is greater than any negative situation, and there are unlimited ways that the negative situation can change. All you have to do is practice gratitude and watch the magic take place. Let's take another example. A son whose relationship with his father is troubled. The son feels that no matter what he does, it never seems to be good enough for his father. Number one, I'm grateful that most of the relationships in my life are really good. Number two, I'm grateful to my father for working hard so that I could have the education that he didn't get to have. Number three, I'm grateful to my father for supporting our family through my childhood because I didn't have a clue then how much hard work and money it took to keep our family going. Number four, I'm grateful to my father for taking me to basketball every Saturday when I was a child. Number five, I'm grateful that my father is not as tough on me these days as he used to be in the past. Number six, I'm grateful that my father cares so much about me because he wouldn't be tough if he didn't care so much. Number seven, I'm grateful that through my relationship with my father, I've learned to have compassion and a greater understanding with my children. Number eight, I'm grateful to my father for showing me how important encouragement is in raising happy, confident children. Number nine, I'm really grateful when I get to laugh with my father. Some people never got to do that because they didn't have a father. And for others who have lost their father, they will never have the chance to laugh with their father again. Number 10, I'm so truly grateful that I have my father because amid the tough times, there have been good times and there will be more good times ahead with my father. As a result of the son's heartfelt feelings of gratitude for his father, he will change their relationship for the better. The son changed the way he thinks and feels about his father, which immediately changes what he attracts from his father. Even though the son was being grateful in his mind, at an energetic and quantum level, the son's gratitude will have a magical effect on his relationship with his father. Provided he maintains his gratitude, by the law of attraction, the son must receive far better circumstances with his father, and their relationship must begin to improve immediately. Remember, you can tell your gratitude is working by the way that you feel. You should feel a lot better about the situation after practicing gratitude. The first evidence of gratitude's magical power working
is your feelings lifting. So when you do feel better about it, you know the situation will improve and the solutions will appear. The answer to any negative situation you want to resolve is to focus concentrated gratitude on it until you feel better inside. Then you will see the magic work its wonder in the outside world. In making your written list, make sure you list each of the 10 things you're grateful for in the following manner. I'm so grateful for dash, or I'm truly grateful for dash. And finish the sentence with what you're grateful for. You can also use Walt Disney's way of using gratitude's magical power if you find it easier. I'm so glad that dash, and finish the sentence with what you're glad about. Once you've listed 10 things you're grateful for, finish the magical way out of negativity practice by writing, thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. And just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. It may be a challenge, but see if you can make it through one day. There's an important reason to do this, because most of us have no idea how much we speak negatively, but you'll have an idea after watching your words for a day. Remember that negativity and complaint bring more of those things. And if you're aware of what you're saying, you can stop and decide if you want the consequences of what you're about to say. Here's a magic lifeline you can use if you notice yourself thinking or saying something negative. Stop immediately and say, but I have to say that I'm really grateful for dash. Finish the rest of the sentence with something, anything that you're grateful for. Take this magic lifeline with you and grab a hold of it whenever you need it. And if any little problem or situation appears in the future, remember to put out the embers with gratitude before it grows into a fire. At the same time, you will ignite the magic in your life. Magic practice number 7, the magical way out of negativity. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say, thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, choose one problem or negative situation in your life that you most want to resolve. Number 3, list 10 things that you are grateful for about the negative situation. Number 4, at the end of your list, write, thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. Number 5, just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. If you notice yourself thinking or saying something negative, use the magic lifeline. Stop immediately and say, but I have to say that I'm really grateful for dash. Number 6, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yeah, Thank thank you so you. much, Shivani. Thank you. Thank you. Long and beautiful chapter. So yeah, this is what we need to actually figure out that कौन सी लाइफ का एरिया है जहाँ हमको बार बार हम पुल डाउन हो जाते हैं, फिर से उसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि कुछ क्रॉनिक प्रॉब्लम हमेशा होती है जो बहुत टाइम से चल रही होती है, which always takes us, drags us below the line. So उस एरिया में आज ग्रैटिट्यूड डालेंगे, और भी 3-4 प्रैक्टिसेस हैं आज की, it is not just one.
बिकॉज इसमें मैजिक लाइफ लाइन है। उसके बाद ऑफ कोर्स लाइक आज हमको कोई नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना है पूरे दिन, बहुत सारी चीजें आज करनी। सो इसमें इट इज टू डू विथ फाइंडिंग गुड थिंग्स इन एनी नेगेटिव सिचुएशंस। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बी पॉजिटिव, जरूर कुछ अच्छा होता है, देयर इज ऑलवेज सन शाइनिंग बिहाइंड द क्लाउड्स, दोज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स वी हैव ऑलवेज हर्ड। बट अब हमने पर प्रैक्टिस नहीं किया था उन सब चीजों को, आज हम प्रैक्टिस करेंगे उन सब चीजों को। वी विल प्रैक्टिस, वी विल सी दैट कैसे कितनी भी बुरी सिचुएशन हो सकती है उसमें से हम अच्छी चीजें कैसे निकालते हैं। और अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन आई है तो ये बहुत पावरफुल चीज है दैट डेस्टिनी हम अपनी खुद ही बनाते हैं। ठीक है, आई नो वन पर्सन वेरी क्लोजली। अपना मैंने आपको एग्जाम्पल बता ही दिया था कि मेरा हॉरोस्कोप वाज ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ, मतलब मेरे हॉरोस्कोप में पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था, सीवियर डिप्रेशन एंड जिसके लिए मुझे ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था। और मेरा हॉरोस्कोप गलत नहीं बना हुआ है। मैंने आपको बताया था कि मेरी जो फ्रेंड थी उसने मेरे पास्ट का पूरा सब कुछ बताया कि लाइक उस दिन ये हुआ था, देन यू स्टार्टेड योर न्यू करियर, इस तरह से लिटरली मंथ वाइज शी हैड टोल्ड मी कि अकॉर्डिंग टू हॉरोस्कोप इस मंथ यू स्टार्टेड अनदर करियर, दिस वाज द मंथ व्हेन यू डिड दिस। सो बिल्कुल करेक्ट बना हुआ है, व्हिच मींस बिल्कुल करेक्ट बना हुआ है। बट एवरीथिंग दैट शी सेड ऑफ लेट इन द लास्ट 5 years is not true, मतलब that means horoscope हमने चेंज कर दिया है ना, जो astrological charts, now the charts are aligned with us, that means thoughts become things, isn't it? मतलब जो चीज आप सोचोगे आप वैसे हो जाते हो, so you can craft your own destiny. So there are certain things, कई बार ऐसे बोलते हैं ना that कोई चीज अगर हमारी लाइफ में कोई ड्रीम हमारी अचीव नहीं हो रही है, या फिर कोई चीज है जो हमको लाइक रिलेशनशिप रॉकी चल रही है थोड़ी सी, जिसके कारण हम बार बार भी गेट पुल डाउन, है ना, और फिर दोबारा से अपने आप को ऊपर उठा के लाते हैं, फिर वापस गिर जाते हैं। या ऑब्वियसली किसी का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो उसको तो दुख होगा ही ना। सो वो फिर ऊपर जा रहा है, फिर उसको लग रहा है कि ठीक है वापस से, क्योंकि बिजनेस मीन्स दैट इट इज द सोर्स ऑफ इनकम एंड लाइवलीहुड फॉर दैट पर्सन। सो ऑब्वियसली उसको अच्छा चलना बहुत जरूरी है, और नहीं तो घर कैसे चलेगा। तो वो पर्सन बार बार पुल डाउन हो जाता है, फिर वो अपने आप को ऊपर खींच के लाता है कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब एवरीबडी फेसेस इट, अगेन दैट पर्सन गोज डाउन। दैट मीन्स कि कुछ एरिया उसके लाइफ का जो उसका अच्छा नहीं चल रहा है, तो हम अब उसमें ग्रैटिट्यूड ढूंढेंगे। रिलेशनशिप में या जॉब नहीं है, या जो भी हमारा लाइफ का वो वन पर्टिकुलर एरिया है जिसमें हमको रोशनी लानी है, तो वो बिल्कुल अंधेरे में है अभी, और मे भी बहुत ज्यादा अंधेरे में नहीं है, थिंग्स आर मूविंग, बट उसमें बहुत हमको वी वांट टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ लाइट एंड ब्राइटनेस इनटू इट, देन इट इज द ग्रैटिट्यूड दैट्स गोइंग टू वर्क, एंड इट वर्क्स रियली फास्ट इन दिस। और कभी कभी आपको ये वाला प्रैक्टिस में रोज करना पड़ेगा, अगर वो एरिया आपका बहुत ही ज्यादा क्रॉनिकली आपको बॉदर कर रहा है और उसमें कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है। वैसे तो ऐसे होता नहीं है। अगर कोई ऐसे कहता है ना कि बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आया है, या मैं ये प्रैक्टिस 25 डेज से कर रही हूँ, मेरी लाइफ में कोई खास शिफ्ट नहीं आया है, इसका मतलब है वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है वो कैजुअल एटीट्यूड है। ठीक है, सो कैजुअल एटीट्यूड के साथ कभी भी मतलब जिंदगी को बहुत माइंडफुली लीड करना पड़ता है, ये मैंने देख लिया है। मतलब आप एक जगह पे भी, मतलब एक जगह आपका मोमेंटम गया ना किसी सिंगल एस्पेक्ट के साथ में, and then all the other things in their life also stop working. So this is how it works. We have to be very mindful, because जो emotions होते हैं उनको drive करना ये हमारे हाथ में हमेशा होना चाहिए। ठीक है, और बहुत बार we have to do it fakely. I mean, वो दिल से नहीं निकलता है। Obviously you're feeling low, somebody is just yelled at you, you cannot feel happy about it, है ना। अगर किसी ने कोई अच्छे से बात नहीं की, lost all manners and spoken to you, obviously you can't feel good about it, but you can still say thank you universe, thank you universe, thank you for the air, thank you so much, thank you। आप मैजिक वॉक कर सकते हो, आप अपनी बॉडी के लिए थैंक यू बोल सकते हो, अपने आईज के लिए थैंक यू बोल सकते हो उस टाइम। तो वो एनर्जी शिफ्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके, बिकॉज जैसे इब्राहिम हिक्स का मैं वो पढ़ रही थी, तो उन्होंने सोचा कि ये सोचो कि आप एक लाइक जायनॉर्मस बीइंग हो, मतलब अर्थ पे सब कुछ है, और आप वो जैसे क्या बोलते हैं ना, पहले जीनी बोलते थे, तो दैट जीनी की तरह आप जायंट मैग्नानिमस कैरेक्टर हो,
ठीक है, अब आपको नीचे दिख रहा है, अच्छा यहाँ पे समुद्र है, अच्छा यहाँ पे ये वाली कंट्री है, अच्छा आपको ये है, अच्छा यहाँ पे मेरा मेरा कंट्री है इंडिया, अच्छा आई लिव इन न्यू दिल्ली देयर, ओके व्हाट आई कैन सी इज वाओ कितना सुंदर 5 स्टार होटल्स है, वाओ कितना सुंदर ये है, अच्छा यहाँ पे न्यूयॉर्क है, यहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। तो आप एक जायंट बीइंग की तरह नीचे सब कुछ देख रहे हो अपना, ठीक है। तो उन्होंने एक जगह ये समझाया है कि यू आर लाइक दैट, एवरी ह्यूमन इज लाइक दैट आप वो जायंट हो। अब आपके पास एक बैग है हाथ में, उस बैग में आप उस पूरे यूनिवर्स में से वो सारी चीजें डालो जो जो आपको चाहिए अपनी जिंदगी में। कितना अच्छा एनएलपी प्रैक्टिस है ना ये। आई थिंक मुझे इतना अच्छा लगा था वो वाला पढ़ के, दैट यू कैरिंग अ बैग और आप एक बीइंग और आपको पूरा अर्थ प्लैनेट दिख रहा है वहां पे, ठीक है। आपको वेल्थ दिख रही है, आपको हेल्थ दिख रही है, आपको अबंडेंस दिख रही है, आपको बहुत परफेक्ट हेल्थ हेल्दी बॉडी दिख रही है, आपको वैसा बनना है इन टर्म्स ऑफ योर बॉडी वेट और वट एवर। सो सब कुछ आपको दिख रहा है। अब आप अपने झोले में उसमें डालो वट एवर, पुट थिंग्स इन योर बैग। यू वॉन्ट टू पुट लाइक से you want to travel to Italy, so put that country in your bag. Okay, this is what I want. I want to put this in my bag. Okay, now what do I want? I want to build an office like that I can see here, like a New York building. I want an office like that जिसमें खूब सारे लोगों को मैं एम्प्लॉयमेंट दे रही हूँ, जिनका घर चल रहा है। ओके, आई पुट दैट इनटू माय बॉक्स। सो वो आपका विश लिस्ट वाला बॉक्स है या बैग है, ठीक है। सो उसमें आप वो सारी चीजें डालते जाओ, बिकॉज एंड वॉट एवर यू पुटिंग देयर एंड फील गुड अबाउट इट, नॉट लैक कि मेरे पास है नहीं। फिर आपको वहां पे दिख रहा है कि खूब लवी डवी सा कपल है एंड यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर राइट नाउ, सो यू कैन जस्ट पिक दैट अप इन योर डिजायर। वो डिजायर बॉक्स है, उसमें आपने डाल दिया दैट अ लॉट ऑफ लव एंड लॉट ऑफ फन एंड जॉय, great partnership, you find a partner in your life and you really enjoy। फिर आपको लग रहा है कि ओके a lot of wealth। अब wealth money is means to an end, तो यूं करके पैसे नहीं उठाते। मतलब पैसों से आपको क्या क्या चाहिए? पैसा हर इंसान को इसलिए चाहिए होता है क्योंकि उनको किसी तरह का स्टैंडर्ड चाहिए होता है। मे बी दे वॉन्ट टू बाय अ कार, मे बी दे वॉन्ट अ कपल ऑफ हाउसेज, मे बी उनको गोवा में विला बनाना है, मे बी उनको माउंटेन्स में विला बनाना है। तो इसलिए पैसा चाहिए होता है, ठीक है। या एजुकेशन के लिए चाहिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए चाहिए, अपनी खुद की एजुकेशन के लिए चाहिए, ठीक है, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। तो ऐसे में आप वो सोचो कि क्या क्या चीजें अपने बैग में डाल सकते हो। सो दिस इज हाउ इजी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर द क्रिएटर इन आवर लाइव्स। ओके, सो इस तरह आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट फ्रेंड ऑफ माई, नॉट रियली फ्रेंड, अक्वेंटेंस, जिसके हॉरोस्कोप में पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था। मतलब आई डोंट इवन वांट टू टॉक एंड गिव यू द विजन ऑफ इट। सो बट देन वो सारी चीजें उसका बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। अगेन उसकी भी जर्नी में, जब तक उसने ये सब शुरू नहीं किया था, उसकी भी जर्नी में पहले तक सब कुछ सही था इन द हॉरोस्कोप, व्हाट एवर वाज रिटन की ये प्रॉब्लम आएगी, ये आएगी, ये आएगी। बट एवर सिंस आई थिंक वो 2019 से इस जर्नी में है, और तब से लेके अभी तक में लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। मतलब एक भी चीज हॉरोस्कोप की सही नहीं हुई है। इसीलिए the first thing is that all of us need to stop seeing our horoscopes. Instead, horoscope 9 planets होते हैं, उनको हाथ जोड़ के रोज थैंक यू बोल दो कि आपकी जिंदगी के साथ अलाइन करने के लिए। सन एंड मून को तो हम रोज बोलते ही हैं, अपने ब्यूटीफुल प्लैनेट अर्थ को हम बोलते हैं। आउट ऑफ द 9 planets, जिस प्लैनेट पे हम रहते हैं, हम उसके सारे सुख अवेल कर रहे हैं। आई मीन जो लग्जरीज हैं, जो सब कुछ अवेल कर रहे हैं। खाना पीना उसी धरती से निकल रहा है जिसको खा के हम जिंदा है ना। तो इस तरह ही करते रहेंगे तो हम अपनी डेस्टिनी शेप करते जाएंगे। तो अगेन कमिंग बैक टू जो अभी करंट हमारी लाइफ की सिचुएशन चल रही है, जिसके बारे में हम ग्रेटिट्यूड ढूंढेंगे आज। सो वो पर्टिकुलर सिचुएशन हम अपनी देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि हो सकता है 2 या 3 चल रही हो, बट उसमें से आप एक देखो, बिकॉज आज एक ही देखनी है। जो आपका सपोज हेल्थ है, बार बार हेल्थ के मामले में चैलेंज आ रहा है, या पैसे का है, बार बार पैसे के, इसका मतलब है आपकी पैसे की फ्रीक्वेंसी अच्छी नहीं है, ठीक है। या हेल्थ चैलेंज आ रहा है, इसका मतलब है आपने हेल्थ को बहुत वरी वाला इमोशन दिया है ना। हैप्पीनेस और परफेक्ट हेल्थ वाला इमोशन नहीं दिया है अभी। बट देन इट इज ओके, जो भी था कल तक, आज सुबह तक, अभी 1 मिनट पहले तक, वो हमारा पास्ट है, ठीक है। बायगॉन्स भी बायगॉन्स। वी विल फोकस ऑन व्हाट डू वी हैव राइट नाउ, बिकॉज द एंटायर पावर ऑफ द यूनिवर्स इज इन द नाउ। सो इस वक्त क्या करना है कि हमको वो वाली जो इशू देखनी है जिसके कारण हमने कंप्लेन की थी। कहते हैं अगर कोई भी चीज नेगेटिव हो रही होती है ना जिंदगी में, इसका मतलब है कि हम बहुत टाइम से उसके लिए कंप्लेन, आई वुड नॉट से, वरी की फीलिंग कर रहे होते हैं।
वरी की फीलिंग होती है, कभी वो एंजाइटी की फीलिंग होती है, कभी वो फीलिंग लो अबाउट दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट, कभी फ्यूचर की चिंता होती है उस चीज को लेके। ठीक है, जैसे पैसा है अगर, तो फ्यूचर की चिंता होगी कि कैसे हो पाएगा, इतना कुछ करना है, मुझे गाड़ी भी लेनी है, मेरी करंट गाड़ी मेरा प्रॉब्लम दे रही है, मुझे न्यू कार खरीदने की जरूरत है, लेकिन बजट इतना है, हाउ विल इट वर्क, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, फिर पास में जाके आप देखोगे कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था, लाइक दोज काइंड ऑफ थिंग्स। तो अब बिकॉज ऑफ दैट क्रॉनिक फीलिंग ऑफ वरी, है ना, लगातार हम बहुत टाइम से उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए चिंता में थे, या हेल्थ के लिए चिंता में है कि मेरा ठीक क्यों नहीं हो रहा, इतना ट्रीटमेंट लाया, डॉक्टर नहीं मिल रहे, ये नहीं हो रहा, अब सिचुएशन पहले से ऐसी हो रही है, या उसमें नेगेटिव इमोशन क्या, अब वो चीज बढ़ेगी। बिकॉज we all know that wherever the attention goes energy flows, है ना। अगर अटेंशन इसमें जा रही है कि हेल्थ ठीक नहीं लग रही है, तो उसमें एनर्जी जाएगी और वो चीज एम्पलीफाई हो जाएगी, जिंदगी में बड़ी होती जाएगी। अगर अटेंशन जाएगा हेल्थ, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस पे, तो वो चीज बढ़ती जाएगी। तो ऑब्वियसली कोई चीज नेगेटिव चल रही है तो माइंड ग्रेविटेट करता है टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो नेगेटिव चल रही है। मतलब ह्यूमन नेचर है ना नेगेटिव बहुत, बिकॉज मिजरी लव्स कंपनी, तो और मिजरी बुरा सोचने में बड़ा मजा आता है। हम रियलाइज नहीं करते इस बात को, बट ह्यूमन ब्रेन इसी तरह से ट्यून्ड है that it for the human brain it is very easy to go towards the past and all that, because creative brain हमारा वैसे भी थोड़ा कम काम करता है। मतलब अभी तक तो हमको पता ही नहीं था जब तक ये बुक्स हमारी जिंदगी में नहीं आई कि क्रिएटिव ब्रेन करके भी कोई होता है ना। तो अभी तक हमारा सारा डेटा जो फीड है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, फ्रंटल कॉर्टेक्स में, सारे हर जगह ब्रेन में वही एक्टिवेटेड था अभी तक, इसीलिए हम पास से हुक्ड रहते थे, है ना। अपना जो पिछला टाइम था उससे हम हुक्ड रहते थे। हमको पता ही नहीं था कि हमारा 40% ब्रेन सिर्फ क्रिएशन पर्पस के लिए है, एंड ऑफ कोर्स 60% मेमोरी स्टोर करने के लिए है, वो हमारी स्टोरेज यूनिट है। तो उसमें हमने बहुत कुछ भर रखा है, हर तरह के एक्सपीरियंसेस भर रखे हैं, उस हिसाब से हमारी जिंदगी है। अब जिस हिसाब से हमारी जिंदगी है उस हिसाब से हमने भर रखे हैं उसमें। सीधी सी बात है। मतलब अगर हमें जिंदगी में कुछ कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं, तो हमारा जो सारा डेटा फीड है ना अंदर 60% में, ये वही वाला डेटा है जो जो हमको अपनी जिंदगी में असलियत में नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब हम उस डेटा को की एनर्जी को शिफ्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो एक तरह का पावरफुल एनर्जी सोर्स है हमारी जिंदगी का, तो हम उसमें एनर्जी शिफ्ट करेंगे ताकि हम अपना जो बाकी का 40% ब्रेन है जिसको हम क्रिएशन ब्रेन बोलते हैं वो शुरू हो जाए। बिकॉज अगर हम उस 60% में ड्वेल करेंगे तो हम सर्वाइवल मोड में होते हैं। सर्वाइवल मोड में कभी भी क्रिएशन नहीं हो सकता, आप कुछ नई चीज नहीं क्रिएट कर सकते। क्रिएशन अगर करना है तो हमें सर्वाइवल मोड से निकल के अपने अदर 40% को करना पड़ेगा। दैट मीन्स दैट अगर क्रिएट करना है तो हमें वो एनर्जी जो है जो 60% में सेव हो रखी है हमारी पिछले जन्म की, अभी की, पता नहीं, हो सकता है 3 दिन पहले ही कुछ हुआ हो वो भी मेमोरी में चला गया। ठीक है, तो उन सब एनर्जी को हम चेंज करेंगे। तो इसलिए उसमें से हम उसके लिए हम लाइफ का वो एस्पेक्ट चूज करेंगे जिसमें नेगेटिव एनर्जी है, और उसमें 10 ग्रैटिट्यूड ढूंढेंगे विद द लैंग्वेज आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट, और आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दिस। जैसे रॉन्डा बर्न ने इस चैप्टर में 2 एग्जाम्पल दिए हैं। एक दिया है कि उस पर्सन की जॉब नहीं थी और वो जॉब ढूंढ रहा था, तो उसने 10 अपने पॉजिटिव चीजें ढूंढी उसमें से। जैसे आई एम सो ग्रेटफुल दैट अब मेरे पास अपना ध्यान रखने के लिए थोड़ा टाइम मिल गया है क्योंकि मैं जिंदगी भर बहुत बिजी रहा हूँ। फिर उसने दूसरा ढूंढा है कि आई एम सो ग्रेटफुल दैट मुझे ये पता लगा दैट लाइक जॉब कितनी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हो सकता है पहले उसने फॉर ग्रांटेड ले रखा हो अपनी जॉब को। फिर उसने कहा कि आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई कुड गिव मोर टाइम टू माई फैमिली। फिर आई एम सो ग्रेटफुल दैट मुझे ये पता लगा कि मार्केट्स में कितनी सारी जॉब्स हैं और कितने एवेन्यूज हैं ग्रो करने के। तो इस तरह उसने वो 10 चीजें निकाली अपनी करंट अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन से, क्योंकि ये अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन उसको बार बार पुल डाउन कर रही थी जिसके कारण उसकी जॉब नहीं आ रही थी, है ना। बिकॉज किसी भी चीज का, नई चीज का दरवाजा खोलने के लिए आपको बहुत अच्छी एनर्जी के साथ खोलना पड़ता है, नहीं तो नहीं खुलती है। तो अब वो अच्छी एनर्जी डाली तभी दरवाजा खुलेगा, है ना। सो वो 10 चीजें निकाली। और दूसरी सिचुएशन थी फादर एंड सन की नॉट दैट ग्रेट रिलेशनशिप। ठीक है, दूसरी सिचुएशन थी, तो जो बेटा था उसकी फादर के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं था।
फिर उसने, और जिसके कारण वो बार बार कुछ ऐसा होता था तो पुल डाउन हो जाता था, तो उसने अपने फादर और अपनी रिलेशनशिप के बारे में 10 पॉइंट्स निकाले और उसने सारी वो चीजें और मोमेंट्स याद किए जब उसके फादर उसके लिए कुछ कुछ करते थे, लाइक बास्केटबॉल गेम के लिए सैटरडे को लेके जाते थे। फिर ही सेड दैट लाइक आई एम सो ग्रेटफुल दैट मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट फादर थे, क्योंकि इनकी बातों से लगा कि उनके फादर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। तो उन्होंने यही लिखा हुआ है कि नाउ माई फादर इज नॉट एज हार्श ऑन मी, मतलब सॉफ्ट हो गए हैं अब, और मुझे ये पता लगा है कि मुझे अपने बच्चों को कैसे रेस करना चाहिए, व्हाट माय फादर फ्रॉम व्हाट माय फादर हैड डन फॉर मी। और बहुत अच्छी चीजें उन्होंने फादर और सन के बारे, मतलब अपनी जो रिलेशनशिप के बारे में 10 चीजें लिखी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसमें। तो इस तरह से उन्होंने ग्रैटिट्यूड ढूंढा, ठीक है। और फाइंड करना पड़ता है ग्रैटिट्यूड, नेगेटिव सिचुएशन में तो फाइंड करना पड़ेगा, यू रियली हैव टू लुक फॉर लाइक कहाँ से और ढूंढ सकते हो। तो ये प्रैक्टिस ऐसी नहीं है कि बस ग्रैटिट्यूड जर्नल उठाया और 10 पॉइंट्स लिख लिए, ये वाली प्रैक्टिस वैसी नहीं है। दिमाग लगा के करना पड़ेगा अच्छी चीजों को सोचने के लिए, पास्ट में जाके, वो भी वैसी वाली सिचुएशन जो मतलब बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है, तो बट ये करना पड़ेगा हमको, है ना। बिकॉज तभी वो लाइट डालेंगे, रोशनी डालेंगे हम उस अंधेरे वाले एरिया में, एकदम से हमारा विक्ट्री का दरवाजा खुलता है इसमें। और एनर्जी चेंज करना हर एक चीज में बहुत जरूरी होता है। तो ये 10 पॉइंट लिख लिए। इसके बाद लिखना है 3 बार थैंक यू, दैट इज थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। ओके, तो ये भी लिखना है। तो 10 पॉइंट लिखने के बाद ये लिखना है, और इसको कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड बोलते हैं। सो कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है एक ही चीज को पकड़ के उसके बारे में 10 ब्लेसिंग्स लिखना, और एंड में, क्योंकि ये सिचुएशन हमको चेंज करनी है, इसीलिए हमने 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोला है, बिकॉज 3 इज द नंबर ऑफ क्रिएशन, ठीक है। तो जैसे ही कोई चीज 3 बार लिख देते हैं, वो नंबर क्रिएशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, क्योंकि नंबर इज डेफिनेटली वेरी पावरफुल, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट इज। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। अब आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, बिकॉज जैसे हम ग्रेटिट्यूड डालते हैं, मैजिकली सोल्यूशंस अपीयर। ये लिखा हुआ है रॉन्डा बर्न ने ऊपर, तो मैंने हाईलाइट भी किया हुआ था। तो मैजिकली सोल्यूशंस विल स्टार्ट अपीयरिंग, बिकॉज हमने अपनी एनर्जी शिफ्ट कर दी है, एंड इट इज ऑल अबाउट एनर्जी। अगर हम अच्छी फ्रीक्वेंसी में होंगे तो हमको डेफिनेटली लाइक वी विल ऑलवेज बी अ विक्टर, मतलब हमेशा हमको दिखेगा कि कोई ना कोई वे आउट आ गया है, ठीक है। सो ये वाली प्रैक्टिस है। और दूसरी चीज इसमें है कि हमको आज पूरे दिन भर में कोशिश करके कुछ भी नेगेटिव सोचना, बोलना या एक्ट नहीं करना है। ओके, थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस में हम क्रिएट करते हैं चीजें, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। तो हमको थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस में आज कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है, कोशिश करके। और अगर नेगेटिव कोई मुंह से निकल भी जाता है, जैसे क्या है, कितना ट्रैफिक है, जैसे ऐसी भी चीज निकल गई, तो हमको मैजिक लाइफलाइन यूज करनी है, ठीक है। और ऐसे बोलना है, बट आई मस्ट से दैट आई हैव अ कार जिसमें मैं आराम से बैठ के जा रही हूँ, ठीक है। इस तरह की चीज, या जो भी व्हीकल आपके पास है, कि कम से कम आपके पास ये है तो आप आराम से कंफर्टेबली बैठे हुए हो और जा रहे हो, ठीक है। तो इस तरह आज कोई भी चीज, सपोज अगर आपने किसी पर्सन की बुराई कर दी गलती से, जैसे आपने डोमेस्टिक हेल्पर को बोल दिया कि कैसा गंदा यूटेंसिल साफ करके रखा हुआ है ना, मान लो आपको उसमें दिख रहा है बहुत सोप लगा हुआ है या कुछ लगा हुआ है, और आपको एकदम से मन में आया कि कितना गंदा काम करती है। सो इमिजिएटली मैजिक लाइफलाइन यूज करके करना है, बट आई मस्ट से दैट वो रोज आती है और इतनी ठंड में भी इतने सारे यूटेंसिल्स को क्लीन करके जा रही है, और मेरे घर की सफाई करती है। घर की सफाई करती है तो मुझे घर की तरफ ध्यान नहीं दे के मैं बाकी चीजों के लिए मुझे टाइम मिल जाता है। आई कैन गो फॉर अ वॉक, आई कैन डू दिस दैट। तो इस तरह से मैजिक लाइफ लाइन, और मैजिक लाइफ लाइन हमको हमेशा यूज करनी होती है, बिकॉज जैसे ही मुंह से निकल गया ना, इमिजिएटली एनर्जी चेंज कर दो, बिकॉज 17 सेकेंड्स लगते हैं मोमेंटम को स्पाइरल डाउन होने में, क्योंकि उसके बाद फिर आपको इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप 17 सेकेंड्स तक टिकाओ ही मत नेगेटिव इमोशन को। जैसे ही मुंह से कुछ निकला, immediately transform that energy and speak something which is opposite to that. Okay, something good. Find out that particular thing. मतलब लाइफलाइन है ये, तो फटाफट लाइफलाइन यूज कर लो, और 17 सेकेंड्स तक उस पर्टिकुलर चीज को ब्रू मत होने दो, सोचो मत उसके बारे में, क्योंकि उसके बाद फिर वो धीरे धीरे लाइक आपको that thought will become thing, and we don't want that वो thought thing बने, because वो वाली situation है, ठीक है। so that is how it actually works। और इसमें ग्लैड गेम का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है।
सो ग्लैड गेम इज समथिंग जो आप अपने साथ खेल सकते हो, कभी भी आपको कभी ऐसा नॉट दैट ग्रेट फील कर रहे हो, है ना, सो जस्ट से दैट ओके अब मैं 5 मिनट अपने साथ ग्लैड गेम खेलूंगी। और जैसे पॉलियाना मूवी है, बहुत पहले बनी हुई थी, इट्स अ यूके बेस्ड मूवी वॉल्ट डिज्नी की। तो उसमें वो छोटी सी बच्ची थी, तो वो हर चीज के लिए, मतलब उसके मम्मी पापा नहीं थे तो अपनी मासी के घर रहने आई हुई थी, और मासी बड़ी रिच थी, तो पूरा उनका जो स्टाफ था उनके उनके साथ वो मस्ती करती रहती थी। तो वो मासी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि वो लोअर स्टाफ के साथ ऐसे उठती बैठती है और उन्हीं के साथ खाना खाती है, उनके साथ ही खेलती रहती है, उन्हीं के बच्चों के साथ रहती थी, बिकॉज मासी का अपना खुद वो कुछ बैगेज चल रहा था पीछे से, उनकी कोई टर्मोइल रिलेशनशिप थी, एंड वो हो जाता है लाइक वेरी एरोगेंट प्रॉपर प्रॉपर लाइक दैट। और पॉलियाना अपनी मस्त थी, सबके साथ, किसी के साथ भी कोई आता था, नेबर आया, उनके कैरेज में बैठ के घूमने चली जाती थी, और हर चीज के लिए थैंक यू होता था उसका। मतलब कोई मतलब उसको कोई उसके मासी कभी कभी पनिशमेंट देती थी कि तुम लेट उठी हो तो तुम्हें आज ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, तो उसको सिर्फ एक सूखा टोस्ट और दूध मिलता था उस दिन, मतलब नॉर्मली तो उनके यहाँ पूरा बुफे ऑफ ब्रेकफास्ट लगता था, तो उसको उस दिन नहीं मिलता था, मासी पनिशमेंट देती थी कि लेट उठी हो तो तुमको सिर्फ टोस्ट और दूध मिलेगा, तो उसके लिए आई एम सो ग्लैड आई गॉट टोस्ट, आई एम सो ग्लैड आई गॉट मिल्क, फिर कोई किसी से कोई मिलने आता था, कोई सड़क पर मिलता था, आई एम सो ग्लैड आई मेट यू। तो उस मूवी से ये सीखा कि आप कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन है, ठीक है, आप हर चीज में आप ग्लैड हो सकते हो, कुछ ना कुछ चीज ढूंढ के। तो इसीलिए पॉलियाना मूवी वो वैसे यूट्यूब पे डली हुई है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी थी, कुछ टाइम पहले तक तो थी, आप कभी फुर्सत मिले तो देख लेना, छोटी सी पिक्चर है वो। बट देन या आई मीन लाइक शी what we can derive from that movie is that हर चीज के बारे में ग्लैड फील करना, एंड हर चीज में से ग्लैड निकालती थी, मतलब पनिशमेंट मिल रहा था, ब्रेकफास्ट नहीं मिल रहा है, तो जो ब्रेकफास्ट मिला है सिर्फ वो सूखा टोस्ट और ही उसके आई एम सो ग्लैड आई गॉट दिस, आई एम सो ग्लैड आई गॉट, आई एम सो ग्लैड, हर चीज के लिए। और धीरे धीरे उसने वो ग्लैड कर करके अपनी मासी का दिल ही बदल दिया लाइक वो जाके हक करती थी, अब मौसी को आदत नहीं थी कि मुझे ऐसे कोई टच कर रहा है और ऐसे हक कर रहा है, तो इस तरह करके कभी वो लेटी हुई थी, मौसी उनके पास जाके लेट गई, अब उनको तो अपने रूम में अकेले रहने की आदत थी, so she would say, oh, go away like that, but then she's, I'm so glad that I live here, like that. So इसीलिए हमको कभी कभी अपने साथ ना ग्लैड गेम करते रहना चाहिए। I mean, any time जब आपको लग रहा है, it is a game that we have to play. So figure out, find out the things. I'm so glad that, I have perfect health. I'm so glad that I can breathe so easily. I'm so glad that my digestive system is so good. I'm so glad, for the beautiful breeze that I can feel here. I'm so glad that I have so many clothes in my wardrobe. I'm so glad that I have money to eat food every day and buy whatever I want to buy. These kind of things. So keep playing this glad game. I think it's beautiful. इनफैक्ट रॉन्डाबा ने बोला है कि जो आज के 10 ग्रैटिट्यूड हमको लिखने हैं उसमें भी आप लैंग्वेज ही रख सकते हो, दैट आई एम ग्लैड अबाउट दिस, आई एम सो ग्लैड दैट दिस, ये वाली भी लैंग्वेज, आई एम सो ग्रेटफुल की जगह आप आई एम सो ग्लैड भी कर सकते हो। सो दिस इज द प्रैक्टिस फॉर टुडे कि 10 चीजें लिखनी है, उसके बाद नीचे जब 10 लिख लिया उसके बाद लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। परफेक्ट का मतलब हमको पता ही है, रेजोल्यूशन का मतलब होता है सबसे अच्छा उसमें से आउटकम निकलना, कि मतलब अच्छे से उसका सोल्यूशन अपीयर हो जाए, रेजोल्यूशन मीन्स उसका सोल्यूशन आ जाए, बहुत परफेक्ट सोल्यूशन आए जो भी समस्या आपकी चल रही है उसका, ठीक है, ये उसका मतलब होता है। और पूरे दिन आज हमको कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना, अगर कुछ नेगेटिव निकल जाता है तो हमको लाइक लाइफ लाइन यूज करनी है और इमिजिएटली चेंज करना है। जैसे किसी पर्सन की बुराई निकल गई तो एकदम से बोलना है नो नो बट आई मस्ट से दैट वो पर्सन बहुत पंचुअल है, बट आई मस्ट से दैट दिस इज द जैसे बैंक के बारे में कुछ बोला है कि बैंक का काम ही नहीं हो रहा है और ये होता है, इमिजिएटली बट आई मस्ट से दैट इतने सालों से उन्होंने मेरे पैसे को इतने सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ संभाल के रखा हुआ है और ऊपर से इंटरेस्ट भी दिया है, दैट इज व्हाट इट मीन्स। तो आज की प्रैक्टिसेस में सुबह काउंट माय ब्लेसिंग्स, वी हैव टू राइट 10 ब्लेसिंग्स और उसको रीड करना है और 3 टाइम्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। और उसके जो रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस, दैट वी होल्ड द रॉक इन अ हैंड, स्कैन थ्रू द सर्फेस, पूरे दिन भर में छोटी छोटी चीजें सोचो कि क्या अच्छा हुआ था, इवन इफ इट इज द ब्रीज दैट यू फेल्ट ऑन योर फेस, इवन फॉर दैट। सो छोटी छोटी चीजें निकाल के उसमें से बेस्ट चीज निकालो कि अच्छा इन सब में से सबसे अच्छी कौन सी थी, फिर उस पर दिमाग पे जोर लगाओ ये थी कि ये थी, देन से थैंक यू टू दैट वन थिंग एंड देन स्लीप। दिस इज ओनली बिकॉज रात को जिस एनर्जी में आप सोते हो, ठीक है, पूरी रात
सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी एक्टिव। तो सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज आप डाल रहे हो उठा उठा के, ठीक है, वो चीज उसमें मल्टीप्लाई होती है। तो पूरी रात जो आपने ग्रैटिट्यूड ढूंढा है और जो बेस्ट चीज निकाली है, वो सारी चीजें आपकी जिंदगी में मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। तो दैट इज वाई वी डू दिस प्रैक्टिस। और सुबह उठ के फिर से हम काउंट माई ब्लेसिंग्स कर लेते हैं। तो सोते वक्त भी हम ग्रैटिट्यूड में सोते हैं, सुबह उठते वक्त भी हम ग्रैटिट्यूड में ही उठते हैं। सो दिस इज द प्रैक्टिसेस फॉर टुडे। और आज Ma'am, पूरे दिन कुछ नेगेटिव नहीं बोलना है। ma'am, हाँ जी। there's one query. In this particular practice of getting 10 blessings for the negativity outcome, so if there is a self-doubt, every frequency goes down. Like for frequently, I'm getting that there is a self-doubt. Is it right or wrong? Or you're not getting into depth. So, usme 10 blessings, what type of 10 blessings we can write for self-doubt as a negativity? Okay, so you have already done this practice. In case like you've done this practice, you've written out the 10 blessings, जो भी आपका issue चल रहा है, और नीचे you've done it exactly like that. Now, एक दिन में sometimes the energy doesn't change. And of course, that doubt can come. Suppose it is to do with health. So जैसे ही आपके मन में फिर से वो आता है that, oh, my health, because doctors have told you something, or maybe you've read about something कि ठीक नहीं होती situation or whatever, then immediately say, thank you for my perfect health. Thank you for my perfect health. The moment that thing, don't let it brew for 17 seconds. The moment a doubt comes, the moment that speck of worry comes in the mind, immediately, thank you for my perfect health, or thank you for my perfect relationship. Thank you for all the money that I have. Thank you for whatever it is. So immediately, sometimes when you don't understand much, then you can just say, thank you, universe, thank you, and start finding gratitude in something else, because it's a very powerful energy, gratitude. It can transform anything, like into gold. So that is what we need to keep doing. Okay, so the Okay? doubt thing frequency, you just divert on something else and just start writing thanks for those particular things. So you switch Not on the divert, frequency. transform. Okay. Yes, ma'am. Thank you. Yeah. Okay, so now we go to the other book, which is The Hero by Rhonda Byrne again. And a beautiful book. We're almost coming to an end of this book. But अभी जो चैप्टर चल रहा है, it is about कि जब ये लोग रॉक बॉटम अपने करियर में पहुंच गए थे, तो हम उन हीरो बुक जो है, ये 12 हीरोज के बारे में है जो बिल्कुल जीरो से लेके ब्रांड्स बन गए और ग्लोबल ब्रांड्स, और कैसे बने उनकी जर्नी वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो अभी वाला जो चैप्टर चल रहा है, जो ऑर्डील वाला, उसमें बहुत क्लियरली लिखा है कि इन सबकी लाइफ में ऐसे मोमेंट आए थे जब वो जीरो पे पहुंच गए थे, और किस तरह जीरो से वो उठे, और कहाँ से कहाँ पहुंच गए, ये हम अभी पढ़ रहे हैं। सो हम पीट कैरल के बारे में, ज्योति, यू रीडिंग फॉर अस? Yes, ma'am. Good morning. Yeah. Pete Carroll. Through through the course of my coaching, I had been fired a few times. When you get fired in my business, everybody in the sporting world knows about it. It's in the newspaper, it's on the news. It's a big deal. It's not like you get fired and you have to go home and just deal with your wife. You have to deal with everybody else. It's a tremendous challenge. But okay, this happened, and there must be something in this that's going to help me be better and stronger down the road. That's where the epiphany hit. That I had worked a long time, but I hadn't dug deep enough to really get in touch with what was important to me so I could bring it out in my next program. My back was to the wall, and I did not know if I was going to get another chance. But if it did happen, I was going to be ready. The opportunity arose to go to USC, and we set out with this vision that we were going to do things better than it's ever been done before. सो कभी भी इनके सेंटेंस से जो इन्होंने अपना वो दिया हुआ है, अपना एक्सपीरियंस, उससे ये पता लगता है कि जब जिंदगी में आप जीरो पे भी पहुंच जाओ, तो बिल्कुल चिंता मत करो। राइज अप फ्रॉम द एशेज इज व्हाट वी से, राइट? कहते हैं ना, लाइक अ फीनिक्स,
Phoenix means you are rising up from the ashes and you're soaring high. मतलब बिल्कुल आप जीरो से शुरू कर रहे हो और आप धीरे 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 ऊपर चले जाओ, है ना? सो दैट इज व्हाट इट इज. शाहरुख खान अपने इंटरव्यू में बोलते रहते हैं ना, मतलब दैट्स वन इंटरव्यू जो बार बार पॉपअप होता है मेरे उस पे, दैट जब आप जीरो पे जिंदगी में होते हो तो आप उसको दो तरह से यूज कर सकते हो. एक तो सोच के कि सब कुछ खत्म हो गया और मुझे ये नहीं करना, या आप दूसरा सोच सकते हो कि अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है, जीरो से ही शुरू करें. डॉक्टर जो विटाली की बुक का नाम ही जीरो लिमिट्स है, और उन्होंने उसमें यही सिखाया है कि आप जब जीरो पे पहुंच जाते हो ना, तो दैट इज द टाइम जब क्रिएशन का प्रोसेस शुरू होता है. बिकॉज आप ये सोचो कि आपका कैनवस बिल्कुल खाली हो चुका है. जैसे कैनवस कैनवस जिस पे आप पेंटिंग करते हैं, या वो स्लेट या वो ब्लैक बोर्ड जो बिल्कुल खाली है अभी, उस पे अब आप चाहो मनचाही चीज लिख सकते हो ना, क्योंकि वो बिल्कुल खाली है. तो इसी तरह से जब आप जीरो पे पहुंच जाते हो तो क्रिएशन का प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है, बिकॉज कोई भी बैकड्रॉप में नहीं है, कुछ नहीं, आपकी स्लेट खाली है. अब आप उस पे लिखो आप क्या जिंदगी में लिखना चाहते हो और कहाँ से स्टार्ट करोगे. एंड दिस इज व्हाट ही डिड. ही सेड दैट आई एम ऑल सेट आउट. उनका विजन आया, उनको अपॉर्चुनिटी मिली जो यूएससी में जाने की, और उनका ये विजन आया दैट नाउ आई एम गोइंग टू डू थिंग्स बेटर देन इट हैज एवर बिन बिफोर. जबकि इतना ह्यूमिलेशन था उनके लिए, तो वो कह रहे थे कि ऑल ओवर द न्यूज़पेपर्स आ गया था कि मुझे फायर कर दिया है एज अ कोच, दैट वे. हाँ जी. Maston Kip. When things go wrong and we get uprooted, what if that's not life being against you or life being harsh? What if those moments are a divine storm? And what if those moments are happening because all the things that don't serve our greatest potential and our spiritual path are being uprooted? Not to punish you, but for your best interest. What if your worst week or your worst day was divinely sent and actually your greatest day? Anastasia Sore. Anastasia Sore was on the brink of releasing her eyebrow product range where her key investor pulled out. Suddenly, Anastasia needed $2 million to market, sell, and distribute a warehouse full of her product and had just 7 days to either find the money or abandon her dream. Rather than quit, Anastasia taught herself everything about the business of marketing, sales, and distribution. Due to her ingenuity and tenaciousness, Anastasia's eyebrow products left the warehouse and went on to become a phenomenal success across the United States and throughout the world. या सो इसमें पहले मैस्टन किप के बारे में दिया हुआ है. मैस्टन किप के बारे में वो कहते हैं कि एक्चुअली ये वर्ड इन्होंने हमको डे जीरो में दिया, जब हमने ये बुक पढ़नी शुरू की थी, हीरो बुक, ताकि हमारे अंदर का हीरो भी बाहर आए. तो इन्होंने ये डिवाइन स्टॉर्म का वर्ड तभी दिया था कि जो चैलेंज जिंदगी में आ रहा है वो एक्चुअली डिवाइन स्टॉर्म है. स्टॉर्म का मतलब आंधी तूफान को बोलते हैं हम. डिवाइन मतलब उसमें गॉड का हायर पावर है कुछ, ठीक है. इसका मतलब है वो हमारे लिए डिवाइन है और उसमें जरूर कुछ बहुत बड़ा रीजन छुपा हुआ है जो रिवील होगा हमको बहुत जल्दी. तो डिवाइन स्टॉर्म इसीलिए आता है क्योंकि यूनिवर्स कुछ सिखाना चाहता है हमको. देयर समथिंग वी नीड टू लर्न, और उसका एक बहुत हायर रीजन होता है, ठीक है. दैट्स व्हाट इट मीन्स. सो इसीलिए इन्होंने बोला है कि ये मत सोचो कि लाइफ बहुत हार्श हो रही है आपके लिए, या कुछ मोमेंट्स आपके ऐसे आ रहे हैं जहां पे आपको लग रहा है दैट थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट, बिकॉज वो डिवाइन स्टॉर्म है. और उसके बाद जिंदगी ऐसी बदलेगी दैट लाइक इट इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. जो इन्होंने लिखा है कि व्हाट इफ योर वर्स्ट वर्स्ट वीक और योर वर्स्ट डे वाज डिवाइनली सेंट एंड एक्चुअली योर ग्रेटेस्ट डे, है ना. तो वो चीज इसलिए हुई थी क्योंकि देर इज समथिंग ग्रेट गुड उसके पीछे है जो हमको ह्यूमन परसेप्शन से नहीं समझ आएगा इस वक्त. सो दैट इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स. फिर एनास्थेसिया का बारे में बताया है कि उनका पार्टनर उनको छोड़ के चला गया, जो बिल्कुल मतलब वो सारा संभालता था, मार्केटिंग, सेल्स वगैरह. एंड सडनली उनको $2 मिलियन की बहुत ज्यादा जरूरत थी. उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे करूं.
तो उन्होंने क्विट तो नहीं किया ना कि वो चला गया, मेरे पैसे का भी नुकसान हो गया, मेरे पास पैसे भी नहीं है, और वो इनका इन्वेस्टर था, तो ऑब्वियसली बिना पैसे के आप बिजनेस को आगे भी नहीं बढ़ा सकते और ऊपर भी नहीं ले जा सकते। तो उनके पास ये वाला प्रॉब्लम आया, बट उन्होंने क्विट नहीं किया ना। उसके बाद उन्होंने स्क्रैच से शुरू किया, अपने आप को पूरा मार्केटिंग के बारे में, सेल्स के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में उन्होंने खुद सीखा। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट उनके जो प्रोडक्ट्स थे वो दे बिकेम वन ऑफ द मोस्ट phenomenal success in the world, and it is even today, you know. And it is not just in the United States but throughout the world. Anesthesia के जो products हैं, they are huge, and that is what is the डिवाइन स्टॉर्म इसीलिए आया था, ताकि इनको राइज अप फ्रॉम द एशेस होने की जरूरत थी। मतलब वो यूनिवर्स वांटेड देम टू काइंड ऑफ जस्ट गो हायर बिकॉज ऑफ दैट ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन, है ना। जब किस्मत बहुत अच्छी होती है ना तो डिवाइन स्टॉर्म आ जाता है जिंदगी में। हाँ जी। I launched this games company, Mind Candy. You have to read the, did you read the name? I didn't, I think मेरा फिर वो नेटवर्क Ma- का होगा। Michael Acton Smith. I launched this games company, Mind Candy, in 2004, and the first game we created was very creative, but it was a commercial disaster. Moshi Monsters was our last roll of the dice, our last chance to build a successful game. We built it, but it used up all the money we had. So at the end of 2008, we basically ran out of cash. My gut instinct was screaming at me that there was some magic here and something really special with this product, but we could not find anyone to invest. That period was the biggest obstacle and the craziest time because I had a team of people that I needed to pay, and we came within a hair's breadth of having to declare bankruptcy and shut the business down. All those long dark nights, waking up at 4 a.m. in the morning, tossing and turning out, knowing how you solve these awful problems. Luckily, I found another angel investor that put in some money, and just before Christmas, we had enough money to pay the staff salaries and to keep the lights on. And the very next month, we launched our subscription service, and we have been profitable ever since. या सो माइकल एक्टन स्मिथ में भी इन सब की इन्वेस्टर रिलेटेड प्रॉब्लम थी। जब भी कोई आप बहुत बड़ा इंटरनेशनल बिजनेस शुरू करते हो ना, उसमें हमेशा इन्वेस्टर का रोल होता है। इनफैक्ट अगर आप अपने 5 अपार्टमेंट भी यहाँ बना रहे हो सेलिंग पर्पस के लिए, जिसको आपको आगे जाके मे बी एयरबीएनबी में कन्वर्ट करना है, आपको किसी और को सेल करना है, वो भी बना रहे हो, तो वो भी बिना इन्वेस्टर के नहीं होता, है ना। बिकॉज क्रोर्स एंड क्रोर्स चाहिए होता है, सो देयर इज ऑलवेज एन इन्वेस्टर इन्वॉल्व। और अगर वो एकदम से बीच में छोड़ के चला जाता है तो समझ में नहीं आता, बिकॉज ऐसे लगता है कि उस वक्त लगता है कि सारा बिजनेस क्रैश हो गया, बिकॉज उस तरह का पैसा रेवेन्यू वापस कैसे आएगा। बट इट जस्ट दे गॉट अनदर एंजल इन्वेस्टर इन्होंने बोला है that I found another angel investor that put in some money, and just before Christmas we had enough money to pay the staff salaries, and that is how it's been. ओके सो एंड दे रिन्यूड देयर सब्सक्रिप्शन सर्विस, और उसके बाद वो बिजनेस कभी भी रॉक बॉटम नहीं हुआ। सो डेफिनेटली लाइक हम सबके लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आएंगे, जस्ट कीप योर टेम्पो, बिकॉज अगर ये किताबें हमारे जिंदगी में है तो हम कभी फेल नहीं हो सकते। और ये सब लिविंग लेजेंड्स एंड एग्जाम्पल्स हैं। इट्स नॉट दैट हम बस ये एडवाइस पढ़ रहे हैं दैट ऐसे ऐसे करना चाहिए, ये अच्छा होता है, ये बुरा होता है। ये इन लोगों की कहानियां हैं, ये भी हमारी तरह इंसान है, इन्होंने ऐसे जिया। और बिल्कुल ही मतलब हमारे तो फिर भी सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि हम स्कूल गए, हमको कॉलेज जाने के पैसे थे, हमने कोर्सेज किए अलग अलग, उनके पैसे थे हमारे पास। इन लोग के पास तो वो भी नहीं था, मोस्टली स्ट्रीट्स पे रहते थे या किसी के घर, जैसे बरसाती टाइप का जो एरिया होता है वहां पे रहते थे। खाने को पैसे नहीं होते थे इनके पास बिल्कुल भी। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ अगर ये पहुंच सकते हैं, तो हमको वी हैव टू थिंक बिग, and that is how beautiful life is. And so just see the time agar hai to it's 7 o'clock. So thank you, Jyoti. We'll be able to read only so much today. Thank you. Thank you so much, ma'am. Yeah, so anything anyone wants to, Muskan, you want to share?
गुड तुम मॉर्निंग गोवा के एवरीवन। बीचेस पे क्या कर रही हो? मैम सुबह मैं सुबह। घूमने आई हुई हूँ सुबह। अच्छा। बहुत सुंदर सी लग रहा है पाम ट्रीज भी। मैम एक डाउट है और एक शेयरिंग है। हम्म। मैम डाउट ये है मैम, कल किसी ने ओपन ओपनो का शेयर करा था, तो शी वाज डूइंग फॉर समबडी एल्स, तो उन्होंने लिखा था आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। या तो अगर हम किसी और के लिए करते हैं तो मतलब हम उनकी सिचुएशन समझ के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि कैसे, वो कंफ्यूजन है। नहीं तो डॉक्टर ह्यूलन जो थे जिन्होंने ये पूरा कॉन्सेप्ट एंड हवाईयन प्रेयर जो की थी, तो वो ये बोलते हैं दैट अगर आपकी जिंदगी में कोई भी एक्सपीरियंस आ रहा है, जैसे अगर मैं एयरपोर्ट पे बैठी हूँ और दो जने बात कर रहे हैं दैट माय फ्लाइट इज डिलेड बिकॉज ऑफ द फॉग एंड मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है और ये कर रहे हैं, अगर मेरे कान में वो बात पड़ी है तो देर इज अ रीजन बिहाइंड इट, दैट मीन्स दैट there is some memory which has attracted that. So anything जो हमारे लाइफ में अगर कोई थर्ड पर्सन से रिलेटेड भी है लेकिन हमको उनके बारे में पता लगा है, तो वो है, इसका मतलब है that I have that power to change that situation. That is what he had said. तो आप किसी के बारे में भी, जैसे अगर आप वर्ल्ड न्यूज पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा कि ये कंट्री ने उस कंट्री को अटैक किया या जो भी किया, that means that अगर वो मेरी जिंदगी में आई है, देर इज अ रीजन आई हैव अट्रैक्टेड इट. दैट्स व्हाई वी से दैट आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी दाल ऑफ का दिस दैट मसूर आई की कैन सी. कविता, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? So I take 100% responsibility of why this experience has come, and I will clean this energy. And that is how you have to do it. So even if it is for people not even known to you, वो तो चलो फिर भी इनकी friend थी, but even if it is a person not known to us, if it is between countries, some political leader sitting in America has said something about someone else, और अगर वो हमारे experience में आया है, इसका मतलब you can take 100% responsibility and clean. So Ho'oponopono is basically cleaning the data, cleaning the past data, negative data, जिसके कारण वो सिचुएशन आ जाए. तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी. आप हाई सेल्फ को बोलते हो, अपने सबकॉन्शियस को, दैट फॉर ऑल दिस डेटा दैट आई हैव accumulated, आई एम सो सॉरी एंड थैंक यू एंड प्लीज फॉरगिव मी. सो दैट इज हाउ इट वर्क्स. सो एवरीथिंग we have the power to clean and change every situation, no matter चाहे उस पर्सन को जानते हो या नहीं जानते हो. सो या मैम हमने अपनी क्लीन करी है कि वो कैंसर अपने पेशेंट की क्लीन उनकी? करे, उसके साथ साथ उसके भी क्लीन होते जा रहे हैं. ओह वाओ। It is a win-win situation. So you're cleaning yours while at the same time you're cleaning the other person's also. जैसे डॉक्टर ह्यूलन ने वो जो मेंटल क्रिमिनल्स थे ना, जो क्रिमिनल्स थे who were mentally sick और कितने 3,000 और सो, उनके लिए किया, मतलब सो ही वाज पोस्टेड देयर और उन्होंने उनके लिए किया, और वो सारे क्रिमिनल्स एब्सोल्युटली दे बिकेम द बेस्ट सिटीजंस ऑफ देयर कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर 6 people आउट ऑफ थाउजेंड्स. ठीक है, 6 people ऑल्सो केम एट जीरो, मतलब दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग नेगेटिव एंड उनकी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गई था, तो थाउजेंड्स ओनली, लाइक मोस्ट ऑफ देम. एंड दैट हॉस्पिटल शट डाउन, मेंटल हॉस्पिटल बंद हो गया वो, मतलब इतना ज्यादा पावरफुल था. तो वो तो ऑब्वियसली डॉक्टर ह्यूलन उनको जानते थोड़ी थे, लेकिन वो क्रिमिनल्स उनके लाइफ के एक्सपीरियंस में इसीलिए आए थे ना, तो वो अपने डेटा की क्लीनिंग कर रहे थे. तो वो डेटा कॉमन है, ऑल इज वन एंड वन इज ऑल, हमने सुना हुआ है ना. सो इफ आई एम प्रेइंग फॉर मुस्कान राइट नाउ, सो इफ आई एम प्रेइंग थैंक यू था, अगर आपका नाम लेके मैं कर रही हूँ थैंक यू मुस्कान फॉर दिस, आई एम क्लीनिंग माइन एंड आई एम क्लीनिंग योर्स. इट्स अ विन विन सिचुएशन. दैट्स व्हाई वी से दैट दैट एनर्जी दोनों जगह क्लीन हो जाएगी. आपका भी डेटा जो पास्ट का था, आपकी पास्ट मेमोरीज, आपके पास्ट अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस, वो भी न्यूट्रलाइज होने शुरू हो जाएंगे, while एट द सेम टाइम मेरे भी हो रहे हैं साथ साथ. सो दिस इज द पावर ऑफ होपोनोपोनो. वाओ या मैम, ये बहुत अच्छी लगी। मुझे आज Thank डिकोड you. हुआ। Thank you, या Muskan, for asking because I had the same doubt. Thank you. या थैंक यू टू मैम। मैम जो दूसरी चीज है वो मेरी फ्रेंड की शेयरिंग है। शी इज ब्यूटीफुल सोल एंड शी इज गोइंग टू शेयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एंड वो आपकी स्टूडेंट भी है। शी इज फ्रॉम VLCC एंड हर नेम इज कनिका। ओके. Hello, good morning, ma'am. Thank you, Muskan. Thank you, Deepti, ma'am, for giving me this opportunity. And I want to share something, ma'am, that what happened with me yesterday. तो कल मुझे बर्थडे पे जाना था और माई कार हैड गॉन फॉर सर्विसिंग. तो आई टोल्ड माई डैड दैट पापा मेरे को आपकी कार चाहिए, मेरे को जाना है बर्थडे पे, आई डोंट हैव अ कार. तो पापा टोल्ड मी यू टेक माई कार
and it's free. I have it the other car. I will go in that. मैंने कहा okay पापा. And my papa has got new car, new Creta. एंड हमारा ना जहाँ पे कार हम पार्क करते हैं, तो पापा का लास्ट टाइम भी क्रेटा ना चोरी हो गई थी, तो पापा ना उस पर एक स्विच लगाते हैं एंड ही रिमूव्स इट वाइल कमिंग बैक, ताकि कोई कार स्टार्ट ना कर पाए. एंड व्हेन यू पुट दैट स्विच बैक, only then the car will start. So what happened, I was not aware of it. So when I went there, I don't know what happened. I went for a birthday party in the morning at 1-8 Punjabi Bagh only. The moment I was about to give the car in the valet, the car stopped working. There was no connection. ना वो on हो रही थी, ना off हो रही थी, ना वो automatic start है, ना वो start हो रही थी. I was amazed कि क्या हुआ है. I was not. I didn't have any. मुझे कुछ था ही नहीं कि क्या हुआ. All of a sudden एकदम से न्यू कार है, वो रुक गई, क्या हुआ. I was clueless. Then I called the valet person कि आप मेरी थोड़ी हेल्प करो, ये है. Then I called पापा कि ऐसे ऐसे हुआ है. तो पापा ने कहा देयर इज अ स्विच, आप उसको निकालो, उसमें एक वायर डालो, वो स्टार्ट हो जाएगी. दैट इज द थिंग दैट यू कैन डू. मैंने कहा ठीक है पापा. फिर वेले वाला ही जो था वो पायर ढूंढ के लाया, उसने उसको कनेक्ट किया पॉजिटिव नेगेटिव से देखकर, और वो स्टार्ट हो गई कार. Okay, I said thank you. It took 15 minutes, and for those 15 minutes, I was in gratitude. I was saying thank you, thank you, thank you that my car is working, and I have reached my destination safely. Thank you, thank you, thank you. Then I came back. I came back around 3, and 3:30 again I have to left for Essex Farms, and I stay in Pitampura. So then when I left for Essex Farms, I forgot कि car खराब हुई थी या क्या थी. My car was working perfectly fine. When I reached there, I gave the car in the valet. Then around 8 o'clock, I left from there. When I left from there, my car stopped again. And luckily, वो valet में ही stop हुई. फिर दोबारा उसको निकाल कर हमने दोबारा उसमें वो वायर डाली, कार स्टार्ट हो गई. कार स्टार्ट होने के बाद जैसे ही कार बाहर आई, अभी पॉश पे ही थी, कार स्टॉप्ड अगेन. फिर उन्होंने धक्का लगाकर कार को साइड पे रखा. And then the moment we were putting that switch and the wire in the again, वो short हो रहा था और वो wire बार बार break हो रही थी कि car start नहीं हो पा रही थी मेरी. But I was in gratitude and I was very calm कि नहीं होगी, मैं घर पहुंच जाऊंगी आराम से. It's okay, it's okay. Then he called someone. He came and he got some another wire and he rolled it 4 times in it. Then the car started. And I was in gratitude at that time. I was not in, मतलब I was not panic. ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. And it is all because of your classes that uh, I'm just listening to you every day. And whenever I'm free, I'm just going to YouTube and listening to you again and again. तो वो कहीं ना कहीं मेरे mind में, it is stored in my subconscious mind somewhere. वो धीरे धीरे register हो रहा है. And I'm not very regular with the written practices. I'm regular with oral practice more as compared to written practice. So I really want to thank Muskan and Deepthi ma'am for associating me with this SAL, and I'm very, very thankful to you. Oh, you're always welcome, and God bless you with the best and enjoy your life. But please do the written practices. At least 3 महीने आप करो till the time you feel that अब मेरा subconscious mind is totally saturated with gratitude and you are in that grateful zone. तब तक you will have to do. ठीक है? So do that. Sure. It's not asking for too much. 5 मिनट की practices होती हैं ये. But then yeah, practices करनी is very important. Then you see your life roll in a very different way. Yeah. I will surely do, ma'am. Yeah. So thank you. Thank you so much for sharing. And be careful with the car now. Understand everything about it when you take it And out, because it just might be 1 o'clock in the night or 2 o'clock in the night. And gratitude will always keep you safe and secure. There's no doubt about it. But it also gives us the wisdom to take care of the things. Right? yeah, ma'am. Surely. Yeah. All right. Yeah. Thank you for Thanks, sharing. ma'am. Thank you. Thank Yeah, so I have a sharing as well, but let me say bye-bye to everyone on the YouTube, and on the YouTube, people who are listening, thank you so much, and bye. I'll have to stop this and